Hello, Shrikant. Welcome to this feedback session. Hello, sir. How are you doing today? I am good. And how are you, sir? I am also doing good. Thank you, Shrikant. So, for the viewers who are After watching this video, we have Mr. Shrikant with us today. He has recently completed his multi-track training program here at iMedita, and he got a job opportunity there in Gujarat with Lauren Group for one of their big clients. So today in this session, we are going to discuss about Shrikant's experience here at iMedita, what kind of preparation he did for interviews, what material he followed, what advice would he give to students who are seeking job opportunities as well. So, hi Shrikant, welcome again, and let's get Hi, started. sir. So, can you Okay. tell us little bit about yourself, your background, कैसा आपका background रहा, a quick introduction about yourself? Okay. My name is Srikant Warkari. Basically, I am from Akola, Maharashtra. I have total 3.5 years experience as a network engineer. But when I am joining the iMedita Institute in 2025 in February month, before that I am not good in a technically in a networking field. So I am deciding the start the networking courses and get the more knowledge about the network in networks and और ज़्यादा से ज़्यादा करियर के लिए ग्रोथ करने के लिए मैंने आई मेडिटा इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया व्हेन आई एम joining the iMedita Institute. First, I am searching on the Google's which classes is best in the Pune location. That time, I am living in the Pune location. Uh, After the many institute I am searching, finally I am decided joining the iMedita Institute because iMedita Institute is uh, promises and good environment in the class. And जब मैं क्लास ज्वाइन करने आया था तो जो मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ था वहाँ पे जो पल्लवी मैम से वो इंटरेक्शन से मैं इम्प्रेस हो गया और मैंने डिसाइड कर लिया कि यहाँ से ही मेरे को मेरा करियर में ग्रोथ हो जाएंगे और दैट्स द रिजल्ट एज नाउ आई एम जॉइनिंग द लॉरेन ग्रुप and my client is a big Alembic Pharma Institute. I am happy to uh, for this opportunity and I am feeling well कि my career is on the track and for in the networking. इंस्टीट्यूट के बारे में बताना मुझे बोलना है तो स्टाफ जो है बहुत एक्सपर्ट है एनी टाइम हेल्पफुल है और जब भी बेसिकली मैं सीसीएनए सुधांशु सर से पढ़ा हूँ सुधांशु सर से बहुत सही बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है नेटवर्किंग में और मैं सीसीएन भी विकास सर से पढ़ा हूँ तो विकास सर बहुत डीप एंड बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं कि आप पूरे डीप में आप नेटवर्किंग के फील्ड में ग्रो करते हो कि वह आपको फील भी हो जाएगा कि आप जो भी सीख रहे हैं कि वो अपने समझ में आ जाता है तो दैट्स इज अ गुड पॉइंट बिकॉज सर ईच एंड एवरी पॉइंट हैज explained in deep and I made it a meaning is that कि deep learning so I made it follow the alls uh, as per the names they are teaching the deeply and getting the um, more knowledge about the in the networking field uh, मैं एडवाइस करना चाहता हूँ जो जो स्टूडेंट ने आई मेडिटा में इनरोल ऑलरेडी किया है तो कीप लर्निंग डूइंग हार्ड वर्क definitely get the success in your life and those students and think about the enroll in the iMedita Institute I am uh, recognize कि you have to get the inor in iMedita and grow in your career. As you mentioned that before enrolling here आपने और भी इधर उधर inquiries की
सो व्हाट मोटिवेटेड यू टू हाँ, ज्वाइन हियर? बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो सिमिलर काइंड की ट्रेनिंग देते हैं। क्या आपका मोटिवेशन रहा कि आई मेडिटा ही ज्वाइन करना है? दूसरा, जब आपने एनरोल किया, उससे पहले जो आपका एक नॉलेज लेवल था, और आज जब आपने काफी सारे कोर्सेज कंप्लीट कर लिए, आज जो नॉलेज लेवल है, वो कितना कॉन्फिडेंट हो आप उस नॉलेज लेवल को लेके? क्या इंप्रूवमेंट आपको अपने आप में दिखते हैं? सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, ओके। व्हाई यू ऑप्टेड फॉर आई मेडिटा? सेकंड, आपका नॉलेज लेवल में क्या डिफरेंसेस पहले थे, और क्या आपको इंप्रूवमेंट लगे अपनी नॉलेज में आज? ओके। सर, आईमेडिटा ज्वाइन इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से पहले एक चीज मेरे मन में खा रही थी कि एक तो मेरा आईटी फील्ड में, आईटी सेक्टर में मेरा करियर जो है थोड़ा लेट चालू स्टार्ट हुआ है। बेसिकली मेरा जो एजुकेशन है, मेरा जो डिग्री है, मैकेनिकली एज अ मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। नॉन टेक्निकल से इन आईटी सेक्टर में, नेटवर्किंग में मैंने जस्ट स्टार्ट किया था। तो करियर में ग्रोथ नहीं हो रहा था, तो उसके लिए मैंने सोचा कि वह कुछ कोर्सेज किए जाए। तो मैंने डिसाइड किया कि वह चलो अपन पुणे में सर्च करेंगे इंस्टीट्यूट। तो मैं जो नियर अबाउट 7 to 8, 6 to 7, 8 classes I am search in a Pune location, and go meet the each and every institute personally. Uh, my last institute is IMEDITA. When I go to the IMEDITA institute, I meet with the counselor Miss पल्लवी मैम। तो उस टाइम मेरा फर्स्ट, आई थिंक जब मैं आईमेडिटा में आया था तो मेरा डिस्कशन नियर अबाउट 1.5 आवर चला था। मैंने मेरे प्रॉब्लम बताए, मेरे मुझे क्या क्या करना है। उन्होंने सबसे बेस्ट ये लगा कि उन्होंने मेरा पूरे प्रॉब्लम सुन ले पहले, बाद में उन्होंने मुझे सॉल्यूशन दिया, और जो भी सॉल्यूशन दिया है वो बाकी इंस्टीट्यूट से थोड़ा मुझे अच्छा लगा और डिफरेंट, कि नहीं, ये इंस्टीट्यूट मुझे मेरे करियर में ग्रोथ करने के लिए डेफिनेटली हेल्प करेगा। और वो डिसीजन आज मेरी सही रही, कि आज मैं जो भी हूँ आई मेडिटा इंस्टीट्यूट से हूँ, वजह से अच्छे कंपनी में जॉब लग गई है। और बिफोर द ज्वाइनिंग द आई मेडिटा इंस्टीट्यूट, मुझे थोड़ा नॉलेज था नेटवर्किंग के बारे में, पर मुझे कंसेप्ट क्लियर नहीं थे, हाउ टू वर्क द नेटवर्क्स हम्म। और प्रोटोकॉल्स के बारे में डीप नॉलेज नहीं था। तो ये इंस्टीट्यूट के में जब मैंने कोर्सेज कंप्लीट किया, तो आज एज नाउ आई एम गुड इन नेटवर्किंग, इन नेटवर्किंग। सो आई एम फीलिंग गुड कि माय डिसीजन इज गुड, राइट। तो आपका ओवरऑल इज लर्निंग द एक्सपीरियंस कैसा रहा? आई मेडिटा में कितना घंटे आप यहाँ पढ़ाई करते थे? कैसे आप क्लासेस ऑफलाइन कर रहे थे, ऑनलाइन कर रहे थे? लैब्स में आपने कितना टाइम, जो आपको स्टडी मटेरियल मिला, उसने कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया आपकी नॉलेज को बिल्ड करने में? सबसे मैं तो ऑफलाइन कोर्स किया पूरा, और मैं डेली 6 से 8 घंटा मैंने वहाँ पे दिए। और फिर ना, जब भी मेरे को वीकेंड में मेरे को छुट्टी रहती थी, तो मैं होल नाइट, टोटल नाइट में वहाँ पे रुक के पढ़ाई करता था। तो उसमें साथ एक मेरे साथ एक विनय भैया थे। जब भी मैं कोई पढ़ाई करता था, कोई टॉपिक कंप्लीट करता था, तो मैं बोलता था कि विनय भैया मेरा ये हो गया, हो गया। तो मेरे को क्वेश्चन करते थे, मुझे आता नहीं था। तब वो जब डांटते थे ना, तब समझ में आता था कि नहीं, और करना पड़ता, तो मैं फिर से और करता था। तो इसके वजह से क्या, मैं थोड़ा और ज्यादा सीखा, समझ गया कि वह एक्चुअल होता कैसा है। यहाँ पे मुझे जो सीनियर जो पर्सन है, जो ऑलरेडी इंस्टीट्यूट से जॉब पे लगे हैं, वो भी, उन्होंने भी बहुत हेल्प किया है ड्यूरिंग दिस 6 मंथ, लास्ट 6 मंथ। सो एंड जो आप आईमीडिया के जो नोट्स है, वो बहुत हेल्पफुल है। उसमें ईच एंड एवरी टॉपिक का और ईच एंड एवरी लैब का डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन दिया है। तो आप कभी भी ऐसा नहीं कि वह आपको वीडियो, मुझे जो रिकॉर्डिंग सेशन ही देखना पड़ेगा। कभी कभी आप
वो जो नोट्स है वो बहुत हेल्प करते हैं आपके पढ़ाई में। ओके। एंड हाउ वुड यू रेट आवर ट्रेनिंग एंड सर्विसेज ऑन अ स्केल ऑफ 10? क्या रेट करोगे अगर आपके पास आज ही ऑप्शन है तो? तो मैं 10 आउट ऑफ 10 करूंगा। ओके। Because IMED are not getting the only training, he get the job opportunity, and they और जॉब अपॉर्चुनिटी देते हैं और 100% देते हैं, वो फिल भी करते हैं। बिकॉज ऑफ यू, यू आर वेरी एक्सपर्ट इन हाउ टू प्लेस द कैंडिडेट एंड हाउ टू टीच द कैंडिडेट। सो आपका जो एक्सपीरियंस है बहुत डिफरेंट लेवल का है सर। तो ये बहुत योर बड़ा एफर्ट्स, ये एक्सपीरियंस तो है आईएमडी। आपके ही एफर्ट्स रहते हैं मेजरली। वी प्ले एज अ यस कैटलिस्ट काइंड ऑफ रोल कि अपॉर्चुनिटी आई आपको बताया, एट द एंड यू हैव टू गिव इंटरव्यूज, यू हैव टू परफॉर्म ड्यूरिंग द इंटरव्यूज। यस ओवरऑल आपने कितने यस इंटरव्यूज दिए होंगे पिछले, जब जब आपने अपने इंटरव्यू स्टार्ट किए, ओवरऑल कितने इंटरव्यूज दिए होंगे? और अ, सर। क्या फीडबैक रहा उन इंटरव्यूज का? उस अप्रोक्सीमेट कितने इंटरव्यूज आपने दिए होंगे? मैंने सर अप्रोक्सीमेटली 16 इंटरव्यूज दिए हैं। ओके। उसमें के मैं मोस्टली इंटरव्यू मेरा सेकंड राउंड तक जाता था। थोड़ा यही एक प्रॉब्लम था कि थोड़ा कम्युनिकेशन का, तो उसके वजह से लास्ट राउंड में मैं थोड़ा नहीं होता। पर मोस्टली मैं स्टार्टिंग के एक दो इंटरव्यू के बाद मैं इम्प्रूव हो गया। और जो आपका जो पीडी सेशन है, आप आई मेडिटा जो पीडी सेशन प्रोवाइड करता है उसका बहुत हेल्प होता है ड्यूरिंग द इंटरव्यू। तो ये एक अच्छा, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है कि आप ट्रेनिंग के साथ अदर एक्टिविटीज भी करवा लेते हैं जैसे पीडी सेशन। और इसके लिए म्हणजे ये जो कोर्स है आपने आई मेडिटा ने जो प्लान किया है एकदम करेक्ट और एक्यूरेट है, जो कि हर एक स्टूडेंट के लिए जरूरी है। एंड आउट ऑफ दीज 16-17 इंटरव्यूज जो आपने दिए, कितने पॉजिटिव बने? कितनों की तरफ से आपको पॉजिटिव ऑफर के कॉल्स आए कि वी वुड लाइक टू गो अहेड फॉर द ऑफर लेटर? 3। और क्या, आउट ऑफ 16 लगभग 3-4 के आसपास पॉजिटिव रहे, उसमें से जो आपको बेस्ट लगा वो आपने कंसिडर किया। ग्रेट। यस क्या दो तीन यस। चीजें आपको ऐसी लगी कि यहाँ पे स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो दो तीन चीजें अच्छी हैं? व्हाट आर द टू टू थ्री थिंग्स यू लाइक हियर एट आई मेडिटा? मैं तो जो स्टूडेंट हूँ उनको यही बोलूंगा, आप कंटिन्यूस कीप लर्निंग एंड डूइंग द हार्ड वर्क। प्रैक्टिस करो, लैब में लैब अवेलेबल है। लैब में आप जितना से ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना टाइम दोगे, उतना अच्छा आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। और आप, ऐसा तो है, ऐसा तो नहीं है कि आई मेडिटा में आप कोर्स कर रहे हो और आप आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्सेज और हार्ड वर्क करने के बाद आपको जॉब नहीं लगेगा, ऐसा होगा ही नहीं। डेफिनेटली मैं खुद गारंटी लेता हूँ कि वह, मुझे भी खुद ऐसा लगता था कभी कभी कि अपने कर रहे तो ठीक है पर आगे चल के जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पर एज नो ऐसा लगता है कि आई मेडिटा इंस्टीट्यूट 100% जो कमिटमेंट करती है जॉब गारंटेड प्लेसमेंट की, वो फुलफिल करती है। सिर्फ आपको एक ही करना है, हार्ड वर्क करना है और कंटिन्यूअसली लर्निंग करना है। बाकी आई मेडिटा आपको फुल सपोर्ट करेगा। और जो मटेरियल आपको मिला इंटरव्यूज के लिए, क्या आपने कोई स्पेसिफिक मटेरियल फॉलो किया, या जो आपको आई मेडिटा से नोट्स मिले वो आपने रेफर किए, जो लर्निंग पोर्टल पे हाँ, रिकॉर्डेड वीडियोस हैं वो रेफर किए, या उसके अलावा कुछ और भी मटेरियल आपने ये रेफर किया? ये सर, जो भी रिकॉर्डिंग सेशन थे, जो कि क्लासेस थे, उसके वो क्लासेस के इसमें से मैंने मेरे खुद के नोट्स बनाए। वो नोट्स ज्यादा ज्यादा मैंने वो यूज किए। और लैब प्रैक्टिस के लिए जो लैब बुक्स है वो यूज किए। और ट्रबल शूटिंग के लिए जो टी शूट आपने जो दिया था उसका यूज किया था टी शूट के लिए, ट्रबल शूटिंग के क्वेश्चन आंसर के लिए। ओके, वंडरफुल। किन किन ट्रेनर से आपने क्लासेस ली? यू मेंशन सीसीएनए, यू टुक इट फ्रॉम सुधांशु भट्ट। सीसीएनपी की जो क्लासेस यस थी वो आपने अटेंड की मिस्टर विकास की।
और बाकी जो मॉड्यूल्स आपके रहे, यस सर। नेटवर्क सिक्योरिटी, पालो अल्टो फायरवॉल, ये आपने? बलदेव सर से सीखा है, पोलो ऑल्टो। ओके। और पीडी क्लासेस श्वेता मैडम के थ्रू आपने अटेंड की, राइट? श्वेता मैम। यस। यस। कि यस सर। पूरे प्रोसेस में 3 4 5 इंस्ट्रक्टर्स एंगेज रहे आपके लर्निंग वाले सेक्शन में, सर लर्निंग वाले प्रोसेस मैं में? तो सर मैं तो एक 3 या 4 या इंस्ट्रक्टर से नहीं, मैं सभी से कनेक्टेड रहता था। जो भी मुझे दिखते थे और मुझे प्रॉब्लम आया तो मैं ये नहीं सोचता था कि ये नहीं, ये मैं इन्होंने मुझे पढ़ाया नहीं है, ये मुझे कुछ बताएंगे। मैं जिन जो भी इंस्ट्रक्टर है अपने इंस्टीट्यूट में अवेलेबल, और मुझे प्रॉब्लम अभी आया है और जो अवेलेबल है उनसे जाके मैंने पूछा कि सर ये मुझे प्रॉब्लम है। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि ये मेरा स्टूडेंट नहीं है तो इनको मैं पहचानता नहीं है। उन्होंने उसी टाइम में तुरंत मुझे सॉल्यूशन दे के अच्छे से समझाया। ओके। यादव सर हो गए, अ, बलदेव सर का, मैं जब सीसीएनपी में पढ़ता था तो बलदेव सर एनी टाइम वहाँ पे उनके कैबिन में रहते थे। तो मैं जब भी मुझे कुछ डाउट आता था, मैं फटाक से जल्दी उठ के बलदेव सर के पास चला जाता था, पूछता था सर ये नहीं आ रहा मेरे को, तो अच्छे से समझा। ऐसा नहीं है कि वह इनके साथ ही मेरा जो इंस्ट्रक्टर थे मेरे, मुझे जिससे मैंने ट्रेनिंग ली, उनसे मैंने सबसे साथ बात की। सबसे जब भी मेरे को कोई, और ऐसा ही नहीं कि वो आप ट्रेनिंग के अलावा सिर्फ ट्रेनिंग के बारे में आप उनसे क्वेश्चन करो। आपके पर्सनल लाइफ में आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप सुधांशु सर से जाके मिलो, विकास सर से जाके मिलो, आपको डेफिनेटली उसका भी सॉल्यूशन मिलेगा। मैं बहुत टाइम में सुधांशु सर के साथ बैठता था तो बात करता था कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, इससे क्या करूँ। तो जो जो आंसर आता था आगे से, कि वो ऐसा लगता है अरे यार ये बोल रहे हैं एकदम सही है, ऐसा ही करना है। विकास सर भी बहुत सपोर्ट करते थे। जब भी मेरा इंटरव्यू होता था तो श्रीकांत कैसा गया, क्या हुआ, क्या पूछे, इसका ये करना था, ऐसा बोलना था, ये होना चाहिए था, ऐसे होता है, ये सब हर एक छोटे छोटे चीज का जो उन्होंने बताया उसका बहुत कुछ हेल्प हुआ मुझे। और क्या, ग्रेट। अ, कोई suggestion आपका कोई? और प्लीज। सबसे इम्पोर्टेंट जो, जब भी मैं डिमोटिवेट होता था तो कोई नहीं रहता तो मैं अपने करण सर और पल्लवी मैम से, मैम ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये ऐसा ऐसा हो रहा है, करण सर को भी कि करण सर ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो मेरे को लेके बैठे थे। चिल रहो यार, करो यार, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ टेंशन मत। जो उन्होंने जो मोटिवेशन दिए है ये दोनों ने, वो बहुत काम आया सर। उसके वजह से मैं आज अच्छे जॉब पे हूँ और मेरे लाइफ में अभी स्टेबल में, कि वह ठीक है। आई मेडिटा मुझे मेरे करियर में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया है, तो इसका मैं अच्छे से आगे चल के इसमें और इम्प्रूवमेंट करूंगा और कंटिन्यूअसली मैं आई मेडिटा के साथ अ, जुड़ा रहूंगा। Thank you, Shrikant. Thank you for your valuable time and valuable feedback in regards to your training experience here at iMedita. लास्ट क्वेश्चन, कोई सजेशन, कोई फीडबैक आपका जिसके थ्रू हम हमारी ट्रेनिंग को फ्यूचर में इम्प्रूव कर सकते हैं? कोई भी आपका सजेशन हमारे लिए? हम्म, एक है कि जो लैब की जो प्रैक्टिस, जो स्टूडेंट है जो लैब में बैठते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सपोज सीसीए ने खत्म हुआ है कोर्स, तो बेसिक लैब प्रैक्टिस उन्होंने की है कि नहीं स्टूडेंट ने, वो पर्सनली कोई अपने ट्रेनर या काउंसलर जो है या कोई लैब असिस्टेंट है, उन्होंने जाके एक बैच बाय बैच स्टूडेंट के जो है कि सही में इन्होंने प्रैक्टिस की है कि नहीं है, और प्रैक्टिस कर रहे हो कहाँ तक पहुंचे हैं, ये आपको तक वो जो फीडबैक जल्दी आ जाएगा ना कि वो कोई स्टूडेंट का कितना प्रैक्टिस है एक्चुअल, तो आपको भी मतलब स्टूडेंट को भी अच्छा रहेगा और इंस्टीट्यूट के लिए अच्छा रहेगा कि उसके लिए उससे ज्यादा म्हणजे फास्ट ये हो जाएंगे कि वो आगे चल के इंटरव्यू के टाइम या प्लेसमेंट के टाइम इजी हो जाएगा ये सब। यू मीन टू से, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स व्हाट दे डू, जैसे ही क्लास फिनिश होती है वो चले जाते हैं, वो लैब में कई बार टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। चले जाते हैं या
वो सिर्फ रिकॉर्डिंग देखते हैं, एक्चुअल प्रैक्टिस करते नहीं है, सिमुलेशन लैब है या रियल इस पे। तो बाद में थोड़ा मैंने देखा है कि बाद में दिक्कत होता है बहुत स्टूडेंट जो भी है। राइट। मे भी ऐसा होता तो स्टार्टिंग में मे भी प्रैक्टिस नहीं करता था, पर लास्ट में मैंने जब जैसे मैंने प्रैक्टिस किया, एक्चुअल लैब सेटअप का प्रैक्टिस किया, तो वो मुझे बहुत हेल्प हुआ ड्यूरिंग द इंटरव्यू। Sure. Thank you, Shrikant. Thank you for this feedback. We'll pass this feedback to our technical admin team as well, ताकि वो थोड़ा मॉनिटरिंग कर सकें स्टूडेंट्स के ऊपर कि वो प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं नहीं हाँ कर रहे हैं, and we can push हाँ them हाँ। to get maximum output through this training. Thank you once again. We wish you all the very best for future endeavors. Keep learning, keep growing, stay in touch, and thank you once again. थैंक यू सर।